Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. You all are welcome in the second lecture of the terms related to diplomacy and diplomatic affairs. In this video, I am going to explain Council of Europe, credentials, customary international law, depository, and many other terms related to diplomacy. Let's move forward to understand Council of Europe. Council of Europe is an international organization that was formed after World War II in 1949, and the basic objective behind the establishment of Council of Europe is to protect human rights, the rule of law and democracy, and to foster Europe's cultural identity, to find out solutions to different social problems like xenophobia, drug abuse, AIDS, or bioethics, and to provide assistance in the institutional reforms of the states of Central and Eastern Europe. The Council of Europe has 47 member states and 6 observer states till the moment. What is the difference between a member state and an observer state? This we have discussed in our previous video. Council of Europe produces treaties and agreements which provide the basis for amendment of laws in member states. One of the greatest achievements of the Council of Europe is the European Convention on Human Rights, which makes it possible for ordinary individuals to submit applications to the European Court of Human Rights. And the European Court of Human Rights is situated in France, Strasbourg, that is a city of France. In this city of France, a European Court of Human Rights has been established. Switzerland is a member of the Council of Europe, and Switzerland has ratified a European Convention on Human Rights. The Council of Europe is not to be confused with a European Union, because Council of Europe and a European Union, these two are entirely separate entities. These two are distinct bodies. At this moment in 2021, a European Union has 27 member states. As you all know that after Brexit, UK has withdrawn its membership from a European Union. So at this moment, a European Union is comprised of 27 member states. But these 27 member states are also member of a Council of Europe. So Council of Europe and a European Union, they both are quite distinct political entities, distinct organizations. And Council of Europe was established in 1949. What are the major objectives and what is the present number of its member states and its observer states? All these we have discussed. Now let's move to next slide. Credentials. Credential means दस्तावेज. Credentials एक ऐसी दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सेंडिंग स्टेट की तरफ से रिसीविंग स्टेट को भेजा जाता है, और उसके अंदर, उस दस्तावेज़ के अंदर क्या लिखा होता है? उस दस्तावेज़ के अंदर ये लिखा होता है कि जिस शख्स को सेंडिंग स्टेट एम्बेसडर अपॉइंट कर रही है, उसकी सारी डिटेल्स, उसका कंप्लीट नेम, उसके स्पेसिफिक फंक्शंस और उस डिप्लोमेटिक मिशन का ऑब्जेक्टिव, उस डिप्लोमेटिक मिशन का जो पर्पस है, जो एम है उस रिसीविंग स्टेट के अंदर उसको भेजने का। अगरचे कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है कि किस तरह से वो दस्तावेज़ बनाई जाएगी, कोई हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस क्या है कि उस दस्तावेज़ के अंदर एम्बेसडर का नेम और उस डिप्लोमेटिक मिशन के जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके नेम्स, उनके टाइटल्स, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और उस डिप्लोमेटिक मिशन का जनरल एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये जो दस्तावेज़ है, क्रेडेंशियल्स हैं, लेटर ऑफ क्रेडेंशियल्स हैं, ये कैसे डिलीवर किए जाते हैं रिसीविंग स्टेट को?
The sending state asks that credence be given to what the agent says on behalf of his government and to grant him a warm reception. एक सेरेमनी होती है और उस सेरेमनी में ये लेटर ऑफ क्रेडेंशियल्स डिलीवर कर दिए जाते हैं सेंडिंग स्टेट की तरफ से, और सेंडिंग स्टेट का जो एम्बेसडर है, जो एक्रेडिटेड पर्सन है, वो पर्सनली हैंड ओवर करता है टू द हेड ऑफ द रिसीविंग स्टेट. नेक्स्ट टर्म इज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ के डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनमें से एक सोर्स ट्रीटीज है. So custom is one of the two main sources of rights and obligations of states. States की responsibilities क्या होंगी, states की duties क्या होंगे और state के rights क्या होंगे. Different जो multilateral और bilateral treaties होती हैं, उनसे states withdraw करती हैं अपने rights and obligations, and on the same pattern, custom is also a source from where a state derives its rights and obligations. Customary international law is referred to when states adopt certain attitudes, believing that they are acting in conformity with an obligation. और customary international law develop कैसे होता है, इसके लिए two elements are required. One is that कि states का जो specific pattern of behavior है, उसमें एक systematic recurrence होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिपीट होना चाहिए ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड सेकेंड, द कन्विक्शन ऑफ दीज स्टेट्स दैट दे आर एक्टिंग इन कन्फर्मिटी विद द रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो देन वी कैन से दैट दिस इज अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी. व्हाट इज डिपॉजिटरी? जो डिफरेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज साइन होती हैं, वो इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स को सेफ कीप करने के लिए उनको किसी महफूज जगह पे रखा जाता है. डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ स्टोर रूम, जहाँ पे डिफरेंट क्रेडेंशियल्स और डिफरेंट ट्रीटीज, डिफरेंट एग्रीमेंट्स को हिफाजत से रखा जाता है. तो जो डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, वो या तो किसी स्टेट के पास रखवाई जाती हैं, सो स्टेट इज़ अ डिपॉजिटरी ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, और एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डिपॉजिटरी ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी. और अगर एक स्टेट डिपॉजिटरी है या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिटरी है, तो उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगे? देयर ड्यूटीज़ आर दोज ऑफ ए नोटरी and include the safekeeping of documents, certification of documents, and the acceptance, safekeeping and transmission of messages, reservations and declarations. बहुत सारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनकी डिपॉजिटरी यूएन है, और जो बायोलेटरल ट्रीटीज़ होती हैं स्टेट्स के दरमियान, वो किसी एक स्टेट के पास हो सकती हैं और दोनों स्टेट्स के पास भी हो सकती हैं. अब जिस स्टेट के पास वो इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसकी सर्टन ड्यूटीज़ हैं कि उसने उन डॉक्यूमेंट्स को हिफाजत से रखना है, उनको सर्टिफाई करना है, और अगर उसके उस ट्रीटी में कोई अमेंडमेंट आती है, कोई चेंज आता है, तो इसको इनकॉर्पोरेट करना है और उसकी कॉपीज़ जो पार्टीज़ हैं, जो कि सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, उनको डिलीवर करनी है. नेक्स्ट इज़ डिप्लोमेटिक कॉर्प्स. डिप्लोमेटिक कॉर्प्स की टर्म उस वक्त यूज़ की जाती है जब एक ही स्टेट के अंदर रहने वाले डिफरेंट एम्बेसीज को कंबाइंडली उनके हवाले से बात की जाए. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान इज़ अ रिसीविंग स्टेट ऑफ डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशंस. लाइक पाकिस्तान के अंदर इरानियन डिप्लोमेटिक मिशन काम कर रहा है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का एक डिप्लोमेटिक मिशन काम कर रहा है, इराक का डिप्लोमेटिक मिशन काम कर रहा है, यूएसए का डिप्लोमेटिक मिशन काम कर रहा है, यूके का डिप्लोमेटिक मिशन काम कर रहा है, और इसी तरह से दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेटिक मिशन मीन्स एम्बेसीज, they are working in Pakistan. And when a student of political science or international relations combinedly talks about all these diplomatic missions, then that student can use this term diplomatic corps. और ये जो डिप्लोमेटिक कॉर्प्स है, अगर इन्हें उस रिसीविंग स्टेट जहाँ पे वो रह रही हैं, जहाँ पर उनकी रिहाइश है,
अगर उन्हें उस रिसीविंग स्टेट के हेड ऑफ़ द स्टेट से या उसके किसी और ऑफिशियल से कोई बातचीत करनी है, तो आम तौर पे जो इस डिप्लोमेटिक कॉर्प्स में से एक पर्सन डीन अपॉइंट कर लिया जाता है, और वो डीन जो है वो इस तरह की सारी मीटिंग्स को और इस तरह के सारे सेशंस को प्रिजाइड करता है। तो डीन कौन होगा? डीन आमतौर पर वो एम्बेसडर होता है जो उस रिसीविंग स्टेट के अंदर एक लंबे अरसे के लिए, सबसे लंबे अरसे के लिए, जिसको वहाँ पे एक्रेडाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा एम्बेसडर है जो कि 3 ईयर्स का एक टर्म पूरा करने के बाद अगेन 3 ईयर्स के लिए उसी रिसीविंग स्टेट के अंदर अपॉइंट कर दिया गया है, जबकि बाकी जो एम्बेसडर्स हैं वो 3 ईयर्स के लिए हैं या 4 ईयर्स के लिए हैं, जबकि जो पहला एम्बेसडर है जिसकी भी हम बात करें, अगर वो 6 ईयर्स हो चुके हैं उसको उस रिसीविंग स्टेट के अंदर रहते हुए, तो आमतौर पर जिसका लॉन्गेस्ट पीरियड हो चुका है उस रिसीविंग स्टेट में रहते हुए उसको डीन अपॉइंट किया जाता है। लेकिन सम टाइम जो नंसियोज होते हैं उनको भी स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, और नंसियो को डीन अपॉइंट किया जाता है। हु इज़ नंसियो? नंसियो इज़ एन एम्बेसडरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होली सी। तो सम टाइम उसको उसके रिगार्ड में जो नंसियो है उसको डीन अपॉइंट कर दिया जाता है, और ऑन डिफरेंट ऑफिशियल ओकेजन्स यही जो डीन है, he is considered as the spokesman for the diplomatic corps, and it is he who, on behalf of and after due consultation with the diplomatic corps, would be entrusted with handing a protest note to the country of residency. रिसीविंग स्टेट के किसी पॉलिसी के हवाले से या किसी और इशू के ऊपर अगर उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नोट भेजना है या कोई और अपनी डिमांड कन्वे करनी है या इसी तरह का कोई और अगर इशू है, तो वो कौन उसको हैंड ओवर करेगा रिसीविंग स्टेट को? कौन उनसे बातचीत करेगा अपने डिप्लोमेटिक कॉर्प्स के बिहाफ पे और डिप्लोमेटिक कॉर्प्स की कंसल्टेशन के साथ? डीन। और डीन कौन होगा? उसमें 2 सिनेरियोज की हमने बात की है कि सम टाइम नंसियो को अपॉइंट कर लिया जाता है एज अ डीन, और सम टाइम वो शख्स, वो एम्बेसडर जिसको सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका होता है उस रिसीविंग स्टेट में रहते हुए। Next is diplomatic career. Who is a diplomatic career? The person who carries official correspondence between a diplomatic mission and a Ministry of Foreign Affairs, diplomatic mission, embassy, और जिस जगह पे, जिस कंट्री में वो डिप्लोमेटिक मिशन तयन किया गया है रिसीविंग स्टेट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, अगर उसके दरमियान और डिप्लोमेटिक मिशन के दरमियान कोई ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस होनी है, तो जो पर्सन इस ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस को कैरी कर रहा है या डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशंस के दरमियान या फिर एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के दरमियान जो पर्सन इस ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस को कैरी करता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड डिप्लोमेटिक करियर। जो डिप्लोमेटिक करियर्स होते हैं दे एंजॉय इनवायलेबिलिटी, दैट्स वाई दे कैन नॉट बी अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। डिप्लोमेटिक बैग्स जो होते हैं, जो डिप्लोमेटिक करियर के पास डिप्लोमेटिक बैग्स हैं जिनको उसने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, जिसमें ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस होती है, तो ऐसे डिप्लोमेटिक बैग्स मस्ट नॉट बी ओपनड और विद हेल्ड। ना तो उनको डिटेन किया जा सकता है और ना ही उनको ओपन किया जा सकता है। They may be entrusted to the captain of a commercial airliner who doesn't, however, acquire the status of diplomatic carrier. Sometime जो एक पैसेंजर एयरलाइन है उसके कैप्टन को भी ये डिप्लोमेटिक बैग दे दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कैप्टन है वो डिप्लोमेटिक करियर बन चुका है और उसको भी जो प्रिविलेजेस और जो इम्यूनिटीज़ एक डिप्लोमेटिक करियर को हासिल हैं वो उसको भी हासिल हो गई हैं, तो ऐसा नहीं होगा। Next is diplomatic démarche. Diplomatic démarche is actually a diplomatic initiative. अगर हम इसकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करें तो इट इज़ अप्रोच बाय वन और मोर एम्बेसीज टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ऑफ रेजिडेंसी, यानी रिसीविंग स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में एक एम्बेसी या डिफरेंट एम्बेसीज का जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका इनिशिएटिव है, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लोमेटिक डिमार्श। Such communications, which may be oral or in written, can deal with a variety of subjects. Diplomatic démarche oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है और different subjects से related हो सकता है, like
communication or request for information, a proposal to open negotiations, a request for a particular privilege or protest etc. This is called diplomatic demarche. और ये जो diplomatic demarche है that is introduced by embassies, that is introduced by diplomatic missions towards the government of the receiving states. रिसीविंग स्टेट्स की गवर्नमेंट के हवाले से जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, लाइक अगर वो कोई स्पेसिफिक बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक बेनिफिट हासिल करने के लिए जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ रिसीविंग स्टेट, दैट वुड बी कॉल्ड डिप्लोमेटिक डिमार्श. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. इसमें हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया है. एक वीडियो इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें हमने डिप्लोमेसी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था. दैट इज़ आवर सेकेंड वीडियो, and now very soon I will upload third video related to diplomacy and diplomatic affairs, and then we will conduct a test about all these terms. So you all are requested to prepare these terms in a very good and in a very efficient manner. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.